Question number 21. Question statement reads, a ball is thrown from a tower of height h with initial speed v. The ball will hit the ground with maximum speed if it is thrown. So as per the question, the ball is thrown from a height h. This is the height h. So it is a projectile thrown from height h. And in case of projectiles, you know, the magnitude of velocity at the ground can be obtained by your scalar equation. And you know the kinematic scalar equation. It is v square is equal to u square plus 2a dot s. For projectiles, it is coming out to be v square is equal to u square plus 2gh. If h is the height from which the body is thrown. So v is equal to u square plus 2gh root over. So here the body is thrown with a velocity v. So u is equal to v here. So now substitute here. And final velocity after flying, let the velocity is v dash here. So final velocity v dash is equal to v square plus 2gh root over. And look at this equation. This equation is independent of the direction of projection theta. It can be projected in any direction. The velocity with which it will hit the ground will be initial velocity ka square plus product of 2gh and whole root. So correct option is option number 4. Question number 22. Question statement reads, in a vernier caliper, n division of the vernier scale coincides with n minus 1 division of main scale. So I can write n into 1 VSD, vernier scale division, is equal to n minus 1 main scale division. Coincides means equal. The least count of the instrument in centimeter is. The least count का definition आप जानते हो. Least count is equal to 1 MSD main scale division minus 1 VSD. ये least count का expression है for vernier caliper. तो 1 MSD minus VSD के जगह substitute कर दो. तो 1 VSD कितना हो रहा है? 1 VSD is equal to n minus 1 upon n into MSD. यहाँ पे substitute करो ये equation में. तो list count is equal to 1 MSD minus 1 VSD के जगह मैंने लिखा n minus 1 by n into MSD. MSD को common ले जाओ. n minus n plus 1 by n. So n cancel. So that is MSD by n. And here MSD is given 1 millimeter. So that is 1 mm by n. But answer is asked in centimeter. So 1 millimeter is 1 by 10 centimeter. So that is 1 by 10 n. So correct option is option number 3. Question number 23. Question statement reads, which of the following is correct? A dimensional incorrect equation may be correct. ये कभी नहीं हो सकता. You know it well. In physics, all the equations are dimensionally correct. जितने भी physics में equation पढ़ते हो सब dimensionally correct है. और dimensionally incorrect है तो physics में कोई भी correct हो ही नहीं सकता. The equation STth u plus half a 2t minus 1 जो आपका tth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, वो इक्वेशन भी फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो भी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जब डिराइव करते हो STth इज इक्वल टू ST माइनस 1 होता है. तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है. कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आता है तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. डिराइव्ड क्वांटिटीज में हैव डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं डेफिनेशन में पढ़े हो वो बेस क्वांटिटी के फॉर्म में ही एक्सप्रेस होती है. वेलोसिटी हुआ जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है. फोर्स हुआ दैट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम. और यूनिटलेस क्वांटिटी में हैव नॉन जीरो डायमेंशन. अगर यूनिटलेस है तो डेफिनेटली वहाँ डायमेंशनलेस भी होगा. तो बेस क्वांटिटी है नहीं उसमें तो डायमेंशन कहाँ से आएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 24. Question statement reads, if Z is equal to P plus Q, then maximum percentage error in the measurement of Z will be. Z की measurement में maximum percentage error कितना होगा. तो आप लोग तो जानते हो P is equal to, मैंने small p plus or minus delta p error के स्टाइल में लिखा मैंने, और Q is equal to Q plus or minus delta Q होता है. तो Z equal to P plus Q है आपका. तो P plus Q ऐड करते हो तो ये दोनों ट्रू वैल्यू ऐड होते हैं. P plus Q प्लस और माइनस डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू. तो इसको तुम लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड. तो ये क्वांटिटी में एरर वैल्यू कौन है? डेल्टा जेड. डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू. एंड ट्रू वैल्यू कौन है?
ट्रू वैल्यू ये है। तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड और मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड, तो पहले फ्रैक्शनल एरर निकालो, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। सो परसेंटेज में जब पूछोगे इंटू 100 होगा, सो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 परसेंटेज, सो इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इसको थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिखो, तो डेल्टा पी अपन पी प्लस क्यू प्लस डेल्टा क्यू अपन पी प्लस क्यू इंटू 100%. So correct option is option number 2. Question 25. Question statement reads: two forces A and B acting at a point are such that A is reversed. The direction of resultant is turned through 90 degree. Then, तो यहाँ पे आप लोगों का A और B two vectors are acting at a point. तो अगर दो वेक्टर A and B are acting at a point, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, they are acting at a point. Then their resultant, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ मैं, ये डायगोनल होता है रिजल्टेंट। आज पर तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट देन डायगोनल ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट इज द रिजल्टेंट। तो अगर ये वेक्टर हुआ A और ये हुआ वेक्टर B, तो ये वेक्टर हो जाता है A प्लस B। अब कहता है कि A वेक्टर इज रिवर्स्ड, वेक्टर A को मैंने रिवर्स कर दिया। वेक्टर A को रिवर्स क्या मतलब, मैं वेक्टर A को रिवर्स करके मैं ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वेक्टर A को मैंने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे हम तो वेक्टर्स को कहीं पे भी बना सकते हैं, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो ए वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में माइनस से बना दिया। एंड अगेन ये बी वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये तो बी वेक्टर है ही। ये वेक्टर देखो, इसको भी सेम कलर में ले लिया, ये तो बी वेक्टर है ही ना। नाउ लुक, ये देखो बी वेक्टर और ये देखो माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर बोथ आर इन सेम ऑर्डर। जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं तो वहां पे ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन यूज करते हो। अदर साइड इन अपोजिट ऑर्डर ये है, ये देखो। तो ये हो गया तुम्हारा b प्लस माइनस ए, मतलब दिस वेक्टर इज योर b माइनस ए वेक्टर। तो ऐसे भी आप लोग पढ़े हो कि एक पैरेललोग्राम अगर है, एक डायगोनल होता है उसका दोनों वेक्टर का सम, और दूसरा डायगोनल जो होता है दोनों वेक्टर का डिफरेंस। और एक पैरेललोग्राम का दो डायगोनल, एक होता है वेक्टर सम तो दूसरा होता है वेक्टर डिफरेंस। ये देखो, ये प्लस बी हुआ, दूसरा हुआ b माइनस ए। अब आज पर द क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट टर्न्ड थ्रू 90 डिग्री। तो पहले रिजल्टेंट ये था, अभी रिजल्टेंट ये हो गया, तो इनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। मीन्स एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल परपेंडिकुलर। और एक प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में आप लोग अगर याद रख लोगे तो बहुत आसान होगा आपको, मैथमेटिकली कैलकुलेट करने से बेहतर है कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम याद रख लो। अगर एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, दैट इज ए रम्बस, वो एक रम्बस हो जाता है। रम्बस मतलब जिसका सारे साइड्स का लेंथ सेम हो जाती है। पैरेललोग्राम के अगर सारे साइड्स का लेंथ सेम तो उसको रम्बस कहते हैं, और रम्बस का ही दो डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, साइड सेम हो गए, और ए इज इक्वल टू बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3।